on with the second time live. Good afternoon, everyone. I am Dr. Anshu Vajpayee from Gwalior, Madhya Pradesh. I am a consultant obs and gynae and infertility at Urmala IVF Center, Gwalior. So it is really an honor. I am welcoming one of the greatest teacher of my life, Dr. Pankaj Talwar sir, on this platform. And it is with great reverence I am welcoming with heartfelt gratitude to sir. And this is on this session sir is being very kind to us to invite me for this session, and your unwavering dedication to the teaching and your deep clinical insights have always been a source of inspiration to me and many of your students like me. So today we are presenting our talk on this topic, thin endometrium. What are the pros and cons of thin endometrium in high risk pregnancy? Oh, let me introduce Sir. Sir is the PhD in clinical embryology, awarded with Vishesh Seva Medal by the President of India for working in the field of infertility. Sir is director, Dr. Pankaj Talwar IVF and fertility and men's clinic at Gurugram. Sorry, and he's academic director ICET and IVF Training Center Academy, director clinical ART program at Gurugram University. Sir is Dean Department of Clinical Embryology and Reproductive Sciences, Sridhar University, Pilani. And Sir is advisor at Doc Infra IVF Consultancy, 2,250 courses enrolled and around 23 countries, and 800 hours of hybrid training has been imparted by Sir. Sir has been edited 9 books and more than 150 publications. Sir has done more than 10 orations and 4 lifetime achievement awards, and Best Armed Forces Project and Research Paper Award from Director General Armed Force 2011 and 12. His Excellence in Fertility TRG Award National 2024, and 250 live workshops in embryology and ART. And Sir is pioneer in ovarian tissue freezing in India. And there are many more achievements of Sir which are endless. Truly, I'm this is truly speaking, and I welcome you, Sir, on this platform with Thank our you. very much confusing topic, thin endometrium. So let me start. Sir, please So thank you continue. so much, Anshu, for being with us. And as we start, I think I bring you greeting from Delhi and from Gavalier both. And she's from Gavalier. She's a very brilliant, brilliant doctor, a very brilliant infertility specialist. And today we are here with you to take you through a journey of a very, very difficult and challenging topic called thin endometrium. Thin आई थिंक हमें एक ही जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है पूरे आईवीएफ के अंदर वो है अगर मैं पूछूं कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे परेशान करती है से इट इज थिनिटी बिकॉज वी हैव टू डू आईयूआई और आईवीएफ थिनिटी ट्रबल्स मी सो वी थॉट वी टॉक अबाउट दिस हमारे जो भी साथी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड आई थिंक वी लाइक टू से हेलो टू यू बोथ अंशु एंड मी and we are with you for next around 45 minutes to 1 hour. If you have any queries, you can put the queries in the group. We'll probably go back and take your queries. It's a very interesting topic and a very confusing topic. But let's make it very simple. हमें एक बहुत ही संक्षेप में और सिंपल वे में आप सबके क्रॉस पुट अप करेंगे और हम सीखना चाहेंगे कि टेलोमेट्रियम क्या होता है. So over back to you, Anshu, and I think we can start the Facebook live. ओके सर. तो सर, क्योंकि इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, कई पेशेंट्स भी होंगे, सो वील मेक इट बिट सिंपल. हिंदी या इंग्लिश, और किसी को कोई भी क्वेरी होंगी तो प्लीज अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में पुट ऑन करिएगा. Sir, first question is how we can say that this is thin endometrium, and what is the threshold measurement for defining thin endometrium, especially in IVF and IUI cases?
I. So beautiful question to start with. I think it's a thing which people don't talk about. So what is a thin endometrium? So first of all, what is an endometrium? जैसा आपने बताया कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो probably they're not doctors. They like to know कि what is an endometrium. So अगर हम एक यूट्रस को देखें, we look at the uterus here, we'll find that in the uterus we have got something. This is the uterine cavity. ये हमारा गर्भाशय है. These are the two ovaries on both the sides, and then we've got the two fallopian tubes. और बीच में we have got, अगर आप देखिए करीबी से देखें, that is called lining of uterus is called endometrium. So जो गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है अंदर की, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं. और एक बहुत ही डायनेमिक लाइनिंग है, बिकॉज लाइनिंग बदलती रहती है. लाइनिंग बदलती रहती है माहवारी के अनुसार. ऑन what day of the period we are looking at it, it keep changing. And this endometrium is not a lining from one side. This endometrium is a lining from both the sides combined. तो जब ये दोनों लाइनें मिलती हैं गर्भाशय की, देन वी रिकॉर्ड द एंडोमेट्रियम. और एंडोमेट्रियम को रिकॉर्ड करने का जो सिंपलेस्ट तरीका हमारे पास में है वो है अल्ट्रासाउंड. वी डू ए स्कैन एंड ट्राई टू पुट अप मार्कर्स एंड गेट द एंडोमेट्रियल लाइनिंग इन व्यू. सो थिन यानी कि पतला, एंडोमेट्रियम मतलब कि लाइनिंग. थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होती है? तो हमको ये जानना है कि जब भी एक हमारी किसी बहन को पीरियड्स आते हैं, उस समय के ऊपर उनकी लाइनिंग थिन होती है, बिकॉज शी विल बी मेंस्ट्रुएटिंग. तो द वुमेन महीने के डे 2 डे 3 पे उनका पूरा लाइनिंग बाहर की तरफ आता है, दैट शेड्स आउट. सो शी विल हैव अ थिन एंडोमेट्रियम ऑन डे 2 और डे 3 ऑफ द पीरियड. दैट विल बी अराउंड 4 to 5 मिलीमीटर. समय के अनुसार जैसे जैसे उनकी बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स टू डे 8 और डे 9, ये लाइनिंग बढ़ना शुरू होती है. लाइनिंग ग्रो करती है और ये लाइनिंग विल टच अराउंड 8 to 9 मिलीमीटर्स ऑन डे 9 और डे 10. किसी भी भ्रूण, किसी भी बच्चे को बैठने के लिए उसको एक लाइनिंग की ज़रूरत होती है, और बेबी विल गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस समवेयर हियर. तो बच्चे को बैठने के लिए एक अच्छा वातावरण चाहिए, उसे बैठने के लिए एक बहुत ही उसे वार्म चाहिए, उसे खाना चाहिए. आप सोचिए कि अगर हम छोटे बेबीज हैं और हमको कहीं पे आराम करना है, आई थिंक हमें सर्दी के समय हमें एक अच्छा ब्लैंकेट चाहिए होता है जो जिसको हम ओढ़ के सो सकें. हमें एक हीटर चाहिए होता है, और गर्मियों के अंदर वी नीड एन एसी एंड अगेन ए ब्लैंकेट टू स्लीप विद. उसी तरह से एक छोटे से एम्ब्रियो या एक बेबी को इम्प्लांट करने के लिए एक अच्छा लाइनिंग की ज़रूरत होती है, लाइक ए बेड फॉर दैट लिटिल बेबी. और ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, ये हमें क्या क्या देती है? दिस गिव्स अस वार्मथ, गर्मी देती है बच्चे को, उसे खाना देती है, और उसको ब्लड सप्लाई देती है. तीनों जब चीज़ें बच्चे को मिलती हैं तो बेबी इज एबल टू इम्प्लांट एंड ग्रो वेल एंड फाइनली वी टेक बर्थ. अब एक चीज़ अंशु इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा क्या कट ऑफ है जिसके बाद बोलें कि लाइनिंग थिन हो गया. तो मैंने बोला कि माहवारी के 8वें 9वें दिन लाइनिंग शुड बी अराउंड 7 to 8, minimum 7 to 8 millimeter. I think the right lining is around 8 to 9 or 1 centimeter. जब भी किसी भी हमारी बहन का लाइनिंग यूट्रस का जो हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, जैसे मैंने बोला, तो हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर इस लाइनिंग को चेक करेंगे स्कैन करते हुए, और उसको हम नापेंगे दोनों कोनों के ऊपर, और हमें पता चलता है कि उसका लाइनिंग कितना है. ये देख पा रहे हैं कि जरा ये अंदर की 2 लाइनिंग है. अगर ये लाइनिंग 7 मिलीमीटर से कम होती है, 7 मिलीमीटर, 7, 5 और 2 7, अगर ये 7 मिलीमीटर से कम है, लाइनिंग को अनहेल्दी माना जाता है और कहा जाता है लाइनिंग थिन एंडोमेट्रियम. बहुत डिबेटेबल है, बट आजकल काफ़ी केसेस में हमको लाइनिंग थिन मिलती है, और 7 मिलीमीटर का 7 mm का कट ऑफ माना जाता है. और अल्ट्रासाउंड के ऊपर कम टू नो दैट इट्स अ थिन एंडोमेट्रियम. बट अगेन अंशु, ये लाइनिंग किस दिन नापी जा रही है? जैसे मैंने बोला कि सेकेंड डे पे तो लाइनिंग रहेगी 3 या 4 मिलीमीटर. जो लाइनिंग है 8 या 9 मिलीमीटर की, ये होनी चाहिए पीरियड्स के 9th या 10th डे की ऊपर. तो पहला, फॉर ऑल द डॉक्टर्स हु आर प्रेजेंट हियर, फॉर ऑल माय लिटिल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हु आर प्रेजेंट हियर,
थिन एंडोमेट्रियम का मीनिंग तभी आता है, ठीक है ना डॉक्टर अंशु, आई एम सेइंग करेक्ट? Yes, yes. ये लाइनिंग नापी जाए महीने के 8वें या 9वें या 10वें दिन के ऊपर, और तब अगर वो 7 मिलीमीटर नहीं है उसे थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं। दूसरा हमें एक और चीज समझनी है कि लाइनिंग आती कहाँ से है। हमने बोला कि महावारी के सेकेंड डे पे लाइनिंग होती ही नहीं है, बिकॉज द गर्ल इज ब्लीडिंग, और 9th और 10th डे पे जाके लाइनिंग बन जाती है 1 सेंटीमीटर की, और फिर लाइनिंग श्रिंक होती है, और फिर पीरियड्स आने के टाइम लाइनिंग फिर चली जाती है। तो हमको ये देखना है कि लाइनिंग कैसे बनती है और कैसे बढ़ती है और कैसे खत्म हो जाती है। तो दो दो मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा, हम दोनों देना चाहेंगे, अंशु और मैं आपको मिलकर देना चाहेंगे कि लाइनिंग नापने का दिन होना चाहिए महीने का 8वां, माहवारी का 8वां या 9वां दिन या 10वां दिन। दूसरा, उनकी ओवरी के अंदर जो जो उनका अंडकोश होता है, अगर हम देखें ओवरी प्रेजेंट है, दिस इज एन ओवरी फॉर दिस वुमन, ये ओवरी है। जब ओवरी में जो उनके जो अंडे बनते हैं, जो फॉलिकल बनते हैं, इन फॉलिकल के अंदर जो हार्मोन बनता है, इसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, इसे हम ईटू कहते हैं। अगर उनके फॉलिकल बनेंगे ही नहीं तो उनका एंडोमेट्रियम बढ़ेगा। सो महीने का 9वां 10वां दिन, और एक फॉलिकल का साइज जो कि तकरीबन 18 से 20 मिलीमीटर का हो, 2 सेंटीमीटर का हो, अगर हमें मिलता है, देन वी से इट इज ए रेलेवेंट थिन एंडोमेट्रियम। दैट माय आंसर। तो थिन 80 बोलना एक अतिशोक्ति होगी, एक गलत डायग्नोसिस होगा अंटिल इट इज डन ऑन डे 9 और डे 10। और जब एक उनके जो अंडेदानी है उसके अंदर जो फॉलिकल का साइज है जो कि हार्मोन बनाता है, जब यहाँ से हार्मोन बनेगा, जब यहाँ से हार्मोन बनेगा तो ये जाके लाइनिंग पे काम करेगा। और अगर ये फॉलिकल बना ही नहीं तो बॉडी में जो मात्रा है ईस्ट्रोजन की वो कम रहेगी, तो लाइनिंग बनेगी ही नहीं। सो हमें एक बहुत सोच समझ के हमको डायग्नोसिस देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइनिंग हमने स्कैन करा और बोला थिन एंडोमेट्रियम है, और ये एक कपल का मनोबल तोड़ सकता है ऐसा रॉन्ग स्टेटमेंट। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम स्टेटमेंट कब देते हैं और किस समय पर देते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंशु, आई एम डन, ओवर टू यू। So, sir, we can counter many cases. What we are seeing in our practice when the patients are of more than like 35 years of age and they have low AMH. Yes. So, sir, how should I mean in your experience, how often does thin endometrium correlates with implantation failure versus other factors? सो वेरी राइट। सो पहला था कि जब किसी ईटी कम होने के बहुत कारण होते हैं। मैंने बोला ईटी, ई में स्टैंड फॉर एंडोमेट्रियम एंड टी स्टैंड फॉर थिन। ईटी कम होने के कारण बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, परंतु हमें याद रखना है कि जब भी किसी लेडी की एज, उम्र बढ़ती है, शी इज एल्डरली, बोथ अराउंड 38, 39, 40, उनका लाइनिंग बढ़ने की मात्रा कम होती जाती है। शी विल हैव थिन एंडोमेट्रियम। नंबर 2, और किसी भी बहन के अंदर जो उनके बदन में अंडे बनते हैं, अब अंडों का जो अकाउंट होता है वो मिलता है हमको एक टेस्ट, हम भी डू ए हार्मोनल टेस्ट दैट इज कॉल्ड एएमएच। अगर उनका एएमएच कम होता है, दिस मीन्स दैट दे मे बी गोइंग टुवर्ड्स प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। जैसे मैंने आप सबको बताया, बात दोबारा बता रहा हूँ कि अगर बदन के अंदर उनके जो अंडेदानी है, जो उनका अंडकोश है, अगर अंडे नहीं बनेंगे, अंडे कम रहेंगे, सो इसे हम बोलेंगे शी इज हैविंग लो एएमएच और लो ओवेरियन रिजर्व। और जब लो एएमएच होगा या लो ओवेरियन रिजर्व होगा या फिर उम्र ज़्यादा होगा, तो फिर रिजर्व कम होने की वजह से दे मेक लेस अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। जब उनकी बॉडी में E2 बनेगा ही नहीं, they will have thin endometrial lining. This is a message which everyone has to get, that age and failing ovaries, जब ओवरी कमजोर होती है तो एंडोमेट्रियम भी उनका थिन रहता है, और अगर एंडोमेट्रियम थिन रहेगा तो बेबी को बैठने के लिए, आराम करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। एक एंडोमेट्रियम एक क्विल्ट है, मैं बोलूँगा एक ऐसी रजाई होती है जो कि हम सब ओढ़ते हैं और हम आराम से सो पाते हैं पिलो के साथ में। और अगर लाइनिंग थिन होगी, सो जो छोटे छोटे हमारे बेबीज जब
कोई कपल कंसीव करता है, सो वो बच्चे एंडोमेट्रियम में जाकर अब नहीं कर पाते, और वो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती, एंड शी विल हैव अबॉर्शंस। सो एंडोमेट्रियम का 7 मिलीमीटर से ऊपर होना एक तरह से अनिवार्य है, और अगर उससे कम होता है, हाई चांस दैट दैट वुमेन वोंट conceive or our embryo transfers or IUI may fail. So, sir, next question is how would you like to prefer to diagnose thin endometrium? Which is your preferred modality, like 3D USG, Doppler, or hysteroscopy, to evaluate that this is good endometrium, texture of endometrium, and how to evaluate the endometrium receptivity? Yeah, absolutely. So, Dr. Anshu, I always feel that हम जो भी करें, वो हमारा जो भी हम काम करते हैं, वो एक टेस्ट शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। थिनेटोमेट्रियम जानने का जो बेस्ट तरीका है, दैट इज बाय डूइंग एन अल्ट्रासाउंड। जब हम स्कैन करते हैं तो हम जान पाते हैं कि लाइनिंग का थिकनेस कितना है, और हमें 2D स्कैन करना होता है। अल्ट्रासाउंड करने के खूब सारे तरीके हैं। Some people do 2D scan, some do 3D scan, some people use color Dopplers. I feel for thin endometrium what we need is a 2D scan, और एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है, हम इसके ऊपर हमें नहीं जाना है। Yes, when we got getting pathology, हमें प्रॉब्लम दिखती है तो then we can go in for a 3D scan. But to diagnose a thin endometrium, I think we should be only doing a 2D scan. That will give us all the information and idea about the lining thickness. There is no requirement at all. There is no requirement at all of doing any type of hysteroscopy. So I don't recommend hysteroscopy. I don't recommend a 3D scan. We should be getting our answers by doing a plain simple 2D scan, and that is an effective method. तो अगर आप अंशु देखें, अगर हम 2D स्कैन करते हैं, सो वी बिल द पेशेंट अराउंड रुपीज 700-800 और 1000 रुपीज। अगर हम 3D करेंगे तो रेट विल बिकम अराउंड 3 to 4,000 rupees, and hysteroscopy may touch around rupees 20,000. So keeping our treatment effective, affordable, and efficient is very very important. और हमारा देश बहुत बड़ा है, with 1.6 billion population we have in our country. प्रॉब्लम भी बड़ी है, देश बड़ा है, बड़ी प्रॉब्लम भी है, और हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइड है। मैं सबको बताना चाहूँगा इस फेसबुक के माध्यम के जरिए कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइड है, जहाँ पर हमारी बहुत कम आबादी ही बड़े शहर में काम करती है। हमारी मेजॉरिटी ऑफ आबादी इज इन Tier 3, Tier 4 सिटीज, और वहाँ पे एक मैं मैसेज देना चाहूँगा। आई वुड मैसेज टू द होल कंट्री टुडे थ्रू दिस लवली फेसबुक लाइव सेशन के, हमको महंगे महंगे टेस्ट नहीं करने चाहिए, हमको सिंपल टेस्ट करने चाहिए, एंड दे विल गिव अस द आंसर। यस, व्हेन हमें कुछ अगर प्रॉब्लम दिखती है, वी गेट ए पैथोलॉजी लाइक ए PCOD और एशरमैन सिंड्रोम और एंडोमेट्राइटिस, yes we can go in for a 3D scan, but to diagnose 2D scan is the right answer from my end. Thank you Anshu, back to you. So this was definitely my one of the question ki do we recommend routine hysteroscopy, and you have already answered that not at all, हमें simple ही रहना चाहिए. So now my next question is, how do you distinguish between chronic endometritis and poor estrogen response as underlying cause? Yes, this is very very nice. How do we diagnose between chronic endometritis and second is क्या बताया आपने? Poor estrogen response as the underlying cause. यस। सो सबसे पहले हमको जानना है कि chronic endometritis होता क्या है। सो जब भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर इन्फेक्शन होता है या इंजरी होता है, जिस कारण से लाइनिंग कट जाती है, तो सपोज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगेन आई एम गोइंग टू दिस पिक्चर, दिस इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग इनसाइड। एंडोमेट लाइनिंग है हमारे पास में। अगर किसी कारण से इस लाइनिंग को चोट पहुंचती है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो पूरी लाइनिंग अफेक्ट हो जाती है, उसमें सूजन आ जाता है। और जब वो, जैसे अंशु आपने देखा होगा, जब हमें हाथ में कभी चोट लगती है, हमारे हाथ में ब्लीडिंग होती है, तो हील तो कट जाती है जल्दी से, पर हमें स्कार बन जाता है, वहाँ पे निशान रहता है। जब भी एंडोमेट्रियम इज अ वेरी सॉफ्ट थिंग, आई टेल एवरीवन,
भगवान ने अगर एक चीज बनाई है जो कि बहुत ही, हम कभी उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, दैट इज एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम हर 3 दिन में रंग बदलता है। एंडोमेट्रियम के अंदर उसमें जो उसका ब्लड सप्लाई है, उसमें हार्मोनल सप्लाई है, हर 3 दिन में एंडोमेट्रियम अपना एक अपना स्ट्रक्चर, अपना कलर बदलता है। और अगर इस और एंडोमेट्रियम में तो सॉफ्ट होता है ना, जैसे मैं टेल एवरीवन, अगर आपने कोई भी कांच का ग्लास उठाया और उसको अगर आपने उसके ऊपर एक हल्का सा एक भाप भी किया तो उस पर निशान आ जाता है। एंडोमेट्रियम इज लाइक सो सॉफ्ट, अगर से चोट पहुंची, ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है, बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग होती है, बहुत नरम होती है। ये एक बेबी के रहने का घर होता है। और किसी कारण से अगर इसे चोट पहुंची या वहाँ इन्फेक्शन हुआ, पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर सूजन आ जाता है। और जब वो हील करता है तो वो पूरा का पूरा आपस में चिपक जाता है। यूट्रस के 2 भाग हैं, दोनों भागों का अपना अपना एंडोमेट्रियम होता है, दोनों मिलकर एंडोमेट्रियल थिकनेस बनाते हैं। बट अगर बीच में इन्फेक्शन आ गया या सूजन आ गया तो वो चिपक जाएगा आपस में, एंड देन इट विल बी वेरी थिन एंडोमेट्रियम, लाइनिंग विल बी अराउंड 2 to 3 मिलीमीटर। इसे हम कहते हैं क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस। और ये कब होता है? आफ्टर एन एबॉर्शन, आफ्टर ए डिलीवरी। आपने देखा होगा कि कुछ हर जगह पे हमारी हमारी बहनों को जब वो कहीं एक कहीं डिलीवरी होती है, दे कैन गेट फीवर देयर आफ्टर, दे गेट फीवर। या उनका एबॉर्शन होता है, unsterile abortion, they can get infection. That is called inflammation of endometrium, is called endometritis. और जब वो क्रॉनिक हो जाता है तो वो थिन होकर आपस में चिपक जाता है। और चिपकेगा तो वी गेट ए थिन वाइट लाइन, आसपास वी गेट इन्फ्लामेशन एंड वी हैव मार्कर्स ऑन अल्ट्रासाउंड, बताएगा कि यहाँ पर क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है। बट अगर किसी के अंदर डेफिशिएंसी होती है हार्मोन्स की, या हार्मोन बहुत ज़्यादा होते हैं, सो मैं अंशु बताना चाहूँगा कि हार्मोन कम होने से भी एंडोमेट्रियम थिन होता है। बट एंडोमेट्रियम के अंदर इन्फेक्शन नहीं है, ये एंडोमेट्रियम हेल्दी है बट कमज़ोर है। एंडोमेट्राइटिस के अंदर एंडोमेट्रियम थिन है और उसमें चोट लगी है ड्यू टू सम इन्फेक्शन, ड्यू टू एबॉर्शन और सम सॉर्ट ऑफ डीएनसी। वो एंडोमेट्रियम कमज़ोर है और थिन है, और पूरा एक 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 तरह का हमें एक इमेज देता है। और अल्ट्रासाउंड भी नो इट्स क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, वो बहुत ही खराब चीज़ होती है। ये किसी को क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस हो जाता है तो उनका फिर माँ बनने का चांस कुछ कम हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर बॉडी में हार्मोन की मात्रा बढ़ गई, अगर हमारी बॉडी के अंदर द लेवल ऑफ हार्मोन्स गो हाई, अंशु somebody has got PCOD, तो उनकी बॉडी में अगर पीसीओडी हुआ तो उनकी बॉडी में जो एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं एंड्रोजेंस, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वो बढ़ने से भी लाइनिंग थिन हो जाता है। सो पीसीओडी can have thin endometrium. Then a woman who have got less follicles, who have got less E2 in the body, जिनकी ओवरीज फेल हो रही हैं, जिन्हें कम अंडे बनते हैं, या इनकी उम्र ज़्यादा है, उनके अंदर भी लाइनिंग थिन हो जाता है। तो लाइनिंग थिन होने के बहुत कारण है। बट क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस डेंजरस, इट इज नॉट गुड टू हैव thin endometrium due to age. We can give them supplementations, they will improve. And in case they've got PCOD, again thin endometrium, but that we can also treat by giving them some sort of medications. So ये दोनों बिल्कुल अलग टेरिटरीज हैं और हमें बहुत सोच के इनके अंदर should give an opinion, and because इनका ट्रीटमेंट इज थोड़ी डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट रहता है। एंड according to the diagnosis, we start managing thin endometrium. So it's very important to differentiate between the three. And thank you so much for bringing it forward. Dhanyawad. So, sir, let's summarize the causes of thin endometrium, medical and surgical. Surgical में तो sir abortion and delivery most common. And Yes. so medical causes, let's summarize for our audience. So medical causes के अंदर जो मैंने बोला कि medical causes के अंदर the commonest medical cause जो मेरे को लगता है वो PCOD है। Okay. PCOD पता है मेरे को इतना कॉमन, आई डोंट नो ग्वालियर में कैसा मिलता है आपको, बट आई वर्क Yes, it is common. वेरी कॉमन। तो PCOD जब होता है ना, देखो हमारी बॉडी में एक मेरी एज ए मेल मेरी बॉडी में एंड्रोजेंस ज़्यादा होते हैं, जो कि मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं। और व्हेन वी लुक एट
एक फीमेल काउंटर पार्ट, तो उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं, उनमें फीमेल फीमेल हार्मोन होता है और मेल में मेल हार्मोन होता है। पर जब किसी को पीसीओडी होता है तो उनकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, और मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ने से उनका लाइनिंग अफेक्ट होता है, उनकी लाइनिंग बढ़ती नहीं। सो पीसीओडी कैन हैव थिन एंडोमेट्रियम वेरी कॉमनली, and PCOD can also have thick endometrium depending upon what type of PCOD we are dealing with. But PCOD का जो endometrium होता है काफी परेशान करने वाला होता है, that is normally thin endometrium. It is a very healthy endometrium. ये बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत एंडोमेट्रियम होता है, पर ये एंडोमेट्रियम बढ़ता ही नहीं। हम एंडोमेट्रियम को डिफाइन करते हैं कि एंडोमेट्रियम में कितनी लाइनें हैं, कि एंडोमेट्रियम एक डिफ्यूज बुझा बुझा सा एंडोमेट्रियम है, उसमें इन्फेक्शन है, या फिर वो ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम है। पीसीओडी में आपको मिलेगा 3 लाइन का एंडोमेट्रियम, ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम। बट ये एंडोमेट्रियम की जो मेन इश्यूज ये रहते हैं कि एंडोमेट्रियम बढ़ता नहीं है, ये 5-6 मिलीमीटर में आके अटक जाता है, 7 पे आके अटक जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं आगे, दिस इज ड्यू टू पीसीओडी। सो दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सेकेंड, अगर बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा ही कम हो गई, और एंडोमेट्रियम बनाने वाला हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, अगर बॉडी में ड्यू टू ओवेरियन फेलियर और प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी और विद द एज अगर बॉडी के अंदर E2 की मात्रा कम होती है, फॉलिकल कम बनते हैं, तब भी थिन एंडोमेट्रियम, बट देयर इज अ डिफरेंट कंडीशन ऑल टुगेदर। ये दो चीजें हैं जिसके अंदर हम रूटीनली डील करते हैं एंडोमेट्रियम, जो इस ड्यू टू दी हार्मोनल कॉजेज, द मेडिकल कॉजेज। एंड इनके समबडी टेकिंग उसी कोई अगर कोई लेडी की दवाई खा रही है, ओसी पिल्स की माला है, जो कि गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, खाती हैं लेडीज, तो उनके साथ में भी उनको एंडोमेट्रियम थिन हो सकता है। These are 3 reasons relating to the hormones, and then there can be infections, like there can be tuberculosis, TB is a very common cause of endometrium. There can be many other infections that woman can have. It may be some sort of chlamydia, though rare, but TB definitely yes can lead to thin endometrium, which is unhealthy. So this is it from my side. These are common conditions barring the surgical reasons. So PCOD, poor ovarian reserve, we can say failing ovary, elderly women are, and TB are the common causes of thin endometrium. Okay. Yes. So there is question from some audience, Mr. Yogesh Gadekar, and he's asking role of PRP injection in thin endometrium, which is I think question of many other fellows as well. Yes, yes. So there are. So thank you so much for bringing this forward, and it's a very interesting question. It's a very interesting question. It's got a very not very certain answer. हम जब हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग ग्रो नहीं करता है, तो हम तरीके ढूंढते हैं उसे कैसे ग्रो किया जाए। जैसे मैं क्या करता हूँ, आई डू लॉट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैं बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा में बिलीव करता हूँ इन चीज़ों के अंदर। आई गिव देम फलग्रेथ, आई गिव देम मिश्रिका गोल, फलग्रेथ, आई गिव देम अशोका रेस्ट। सो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि लाइनिंग को बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। दिस इज वन थिंग। बट व्हेन वी कम टू एलोपैथी, व्हाट डू वी डू? तो एलोपैथी के अंदर हमारे पास हार्मोन्स है, वी हैव गॉट ईस्ट्रोजन टैबलेट्स, हम उन्हें गोली देते हैं खाने के लिए। सो खाने से उनका लाइनिंग बढ़ जाता है। बट कभी ऐसा समय आता है जब उनका लाइनिंग नहीं बढ़ता है। जब लाइनिंग नहीं बढ़ेगा तो हमें देखना है कि लाइनिंग बढ़ क्यों नहीं रहा है। लाइनिंग बढ़ने का कारण क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है, एशरमैन सिंड्रोम है, कि हार्मोनल डेफिशिएंसी। सो आई कैन से विद लॉट ऑफ श्योरिटी, अगर इसका कारण थिन एंडोमेट्रियम का कारण अगर ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम बढ़ नहीं पा रहा किसी कारण से, देन वी ट्रीट पीसीओडी, वी ट्रीट poor ovarian reserve, we give them estrogens and lining it forms pretty well. Sometimes lining फिर भी नहीं बनती है, then we normally give them something called modified HRT, यानी कि modified natural cycle, जहाँ पर we give them some injections and lining starts forming. अब कुछ केसेस में जहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ही अनहेल्दी, जहाँ पे एशरमैन सिंड्रोम है, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस है, या लाइनिंग इज बिकम रिफ्रैक्टरी, हमने सब कुछ करा और लाइनिंग बढ़ नहीं पा रही, तो हम क्या करें? सो कुछ देयर आर समथिंग्स कॉल्ड, एक तरीका जिसे कहते हैं
इंट्रा यूट्राइन इन्फ्यूजन, यानी कि यूट्रस के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रस का मतलब यूट्रस, यूट्रस के अंदर किसी चीज को तरल पदार्थ को जानने को हम क्या डालने को हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इन्फ्यूजन। और हमारे पास मोटे मोटे तीन चीजें लोग डालते हैं। एक डालते हैं GCSF, एक डालते हैं PRP, बट सम पीपल पुट, some people used to do scratching. So now overall ये तीन चार चीजें हैं हमारे पास में। तो अगर हम एविडेंस देखें तो एविडेंस क्या बोलता है? सो PRP इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सो मैंने अपना ब्लड लिया, सो इसमें हम क्या करते हैं, हमने अपना ब्लड लिया और हमने 13 ml 13 ml ब्लड निकाला, एक ट्यूब में डाला विद एंटीकोगुलेंट, उसको स्पिन किया और उसमें से हमने प्लेटलेट निकाल लिए। अब प्लेटलेट क्या होते हैं? Platelets are the ones which make our blood clot. They make our blood clot. So हमने प्लेटलेट को निकाला और प्लेटलेट को अपने खून से अलग किया, इसे कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। Rich plasma. या तो हम प्लेटलेट को निकालने के बाद में प्लेटलेट को हम तोड़ेंगे, वी ब्रेक इट, बाय डूइंग सम, एक तरीका होता है उनको तोड़ने का, वी ब्रेक देम। और जो उनके अंदर से जो केमिकल्स निकलते हैं, दे विल गो एंड एक्चुअली इरिटेट, एंड दे लीड टू नियो एंजियोजेनेसिस। तो वो जहाँ पे ईटी कमज़ोर होता है, तो अगर हम PRP डालेंगे निकाल कर, तो PRP एंडोमेट्रियम के अंदर जाएगा और जो लाइनिंग हमारी कमज़ोर है या तो डैमेज्ड है, उसको वो ग्रो करने के अंदर हेल्प करता है। So PRP is put in the people who are having thin endometrium, we put 2 or 3 times. हम महीने के 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन हम PRP डाल सकते हैं। PRP is a very safe method. PRP is a very easy method, and PRP we all can do. But हम PRP करेंगे ना करें, इसका जवाब मेरे पास में नहीं है। मैं देश को कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा हूँ। PRP is not a recommended therapy. PRP एक रिकमेंडेड तरीका नहीं है लाइनिंग बनाने का, ना ही वो GCSF है और ना ही वो HCG है जो हम डालते हैं यूट्रस के अंदर। हम जो लोग डालते हैं, दे कैन पुट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग बिट ऑफ रिसर्च, नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग दिस मेथड्स, कोई गलती नहीं है यूज करने में, बट एज पर दी गाइडलाइंस PRP एंड GCSF आर नॉट द रिकमेंडेड मोडेलिटीज, बिकॉज अगर हम चेक करते हैं गाइडलाइंस फ्रॉम ASHRAE एंड अदर प्लेसेस, they don't recommend using PRP and GCSF. They don't recommend. But मैं भी यूज़ करता हूँ, बट जब मेरे बिल्कुल हाथ बन जाते हैं, जब मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा होता हूँ, then I use PRP and we do get pregnancy once in a while. But मेरा जो आपको मैसेज है वो ये है कि PRP यूज़ करना एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है, ये एक रिकमेंडेड तरीका है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. So, sir, let's come to the hormone management and cyclical management in thin endometrium cases. Do you find a difference in endometrial response between HRT cycles and natural cycles? देखो, नेचुरल साइकिल वो है जहाँ पर हम कुछ करते नहीं है, हम लाइनिंग चेक कर रहे हैं। बट जिस मेरी बहन को लाइनिंग ऐसे थिन आ रही है, इसको लाइनिंग तो नेचुरल ऐसे थिन लाइनिंग आ रही है ना, तभी तो हम उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। जब लाइनिंग थिन ही आ रही है तो नेचुरल साइकिल करके कुछ मिलने वाला नहीं। Okay. मेरी बात समझिए, उनकी प्रॉब्लम है थिन ईटी, एंड दैट इज ड्यू टू लाइनिंग नॉट फॉर्मिंग इन द नेचुरल साइकिल। अब PCOD में लाइनिंग नहीं बनती है। एल्डरली वुमेन में जब ओवरी में रिजर्व कम होता है तो लाइनिंग नहीं बनती। Natural cycle, yes, we do. In a healthy patient, you can do a natural cycle, but I always like to do a modified natural cycle. In a modified natural cycle, I don't give estrogens. I start with, मैं उनको लेट्रोजोल में गोली देता हूँ, तो उनको मैं 5 गोली खिलाता हूँ। उसके बाद I may give HMG, may not give HMG, depending upon her ovarian response. So अगर उनकी ओवरीज शांत है तब उनको मैं HMG ऐड करूँगा, नहीं अगर उनकी ओवरीज PCOD है तब उनको मैं HMG नहीं दूंगा। बट एम इज वंस यू गिव देम लेट्रोजोल और HMG और कंबाइंड, तो उनकी ओवरी के अंदर जो अंडे बनते हैं, एग बनते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। और अंडे बनने से उनकी बॉडी में जो जो बड़े बड़े फॉलिकल बनते हैं जो अराउंड 2 सेंटीमीटर के जाते हैं, दे सिक्रीट estradiol to act upon our endometrium। वो हमारे endometrium पे काम करते हैं वो ईटूस,
एज एन एंडोमेट्रियम ग्रोज बेटर. सो मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा. नेचुरल साइकिल मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ माई क्लाइंटल. जो मेरे पास लोग आते हैं, दंपति आते हैं, आई प्रेफर टू गो इन फॉर आई प्रेफर टू HRT. गो इन फॉर HRT. मॉडिफाइड नेचुरल एचआरटी. एंड देन जब उनका फॉलिकल बन के रेडी, और बीच में कभी भी आई कैन ऐड माई ईस्ट्रोजॉल, E2 ऐड कर सकता हूँ. आई कैन ऐड Okay. ईस्ट्रोजेंस. तो जैसे उनका फॉलिकल बनेगा 2 सेंटीमीटर का, देन आई ट्रिगर इट. उनको तोड़ता भी होगा, गिविंग देम एन ट्रिगर शॉट ऑफ HCG, एंड देन आई कैन कैरी आउट देयर एम्ब्रियो ट्रांसफर आफ्टर 7 days of this. देयर आर डेज वी Okay. कैलकुलेट, देन वी कैन लाइनिंग अच्छा बन जाता है. सो मॉडिफाइड HRT साइकिल्स के अंदर लाइनिंग बहुत अच्छा बनता है, बेहतरीन लाइनिंग होता है, एंड वी गेट वेरी गुड प्रेगनेंसी. Okay, sir. Sir, my next question is what estrogen formulation and route, like oral, transdermal, or injectable, do you find most effective in the cases of thin endometrial lining? यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. बट ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो जो मेरा मैसेज रहता है सबको, कि वो अपने मन को शांत करें. हमारे पेशेंट्स का ना मानसिक जो संतुलन होता है वो बहुत सेंसिटिव सा हो जाता है. सो आई थिंक फर्स्ट थिंग विच विल डू दैट वी हैव टू कीप आवर माइंड क्वाइट, माइंड सेटल्ड. अब हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है. हमारे पास में स्प्रेज है और जेल है. हमारे पास में स्प्रेज हैं जो कि हम स्किन पे लगा सकते हैं. दे आर कॉल्ड एस्ट्रोजन जेल्स. देन वी हैव गॉट tablets which can be put in the vagina, or tablets which can be eaten. So they are called estradiol tablets. So हमको ये देखना है कि हम क्या तरीका चुनते हैं. क्या हम गोली खाना चाहते हैं, क्या हम जेल लगाना चाहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द वेज, ऑल आर इक्वली गुड. बट हमें एक चीज़ खाली समझनी है कि सबसे पहले थिनिटी का कॉज ढूंढें. अगर हमें थिनिटी का कॉज नहीं पता तो हम आगे नहीं बढ़ पाए. सो कॉज होना बहुत ज़रूरी है. जब ईटी बिल्कुल ठीक है, उसका उसका थिन होने का कारण हमें नहीं मिलता है, देन वी शुड बी ऐड एस्ट्रोजेंस. और जब हम ऐड करते हैं तो तकरीबन 10 दिन देने के बाद में भी गिव देम एस्ट्राडियोल टैबलेट देते हैं हम लोग. इसे कहते हैं दे आर एस्ट्राडियोल वेलेरेट और हेमीहाइड्रेट टैबलेट्स. ये गोली आती है 2 मिलीग्राम की. तो पहले 4 दिन में हम देते हैं सुबह शाम एक गोली, और फिर अगले 8 दिन में देते हैं दिन में 3 बार. तकरीबन 10 दिन के बाद में लाइनिंग बनना शुरू हो जाता है, एंड इट टचेज अराउंड 8 to 9 मिलीमीटर. दिस इज़ माई वे ऑफ गिविंग HRT. पहले 4 दिन सुबह शाम एक गोली, और फिर अगले 8 दिन दिन में 3 बार एक गोली, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक लाइनिंग बनता नहीं. कई बार हमें डोज बढ़ानी पड़ती है. अगर हम देखेंगे कि 12वें दिन पर भी लाइनिंग थिन है, देन वी कैन मेक इट 4 times a day. और कई बार डॉक्टर अंशु हमें लगता है कि लाइनिंग बढ़ती नहीं है, तो दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी चेक करना चाहिए हमको. सो हम 8वें 9वें दिन पे वी कैन चेक देयर एंडोमेट्रियल थिकनेस. अगर वो थिन है, देन वी कैरी आउट फॉर देम ब्लड टेस्टिंग ऑफ द E2. हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, और अगर एक एंडोमेट्रियम को थिन बोलना है हमको, एक्चुअली थिन बोलना है, तो उनमें उनमें E2 की मात्रा तकरीबन 200 होनी चाहिए. नॉर्मली जब 200 की मात्रा नहीं आती है, 200 यूनिट्स नहीं आते हैं E2 के, तब तक लाइनिंग बनती ही नहीं. सो अगर हमने उन्हें दवाई दी और उनके E2 की मात्रा बढ़ नहीं रही है बॉडी में दवाई खाने के बाद में, then we can add some sort of gel to her also. So we give gel here, we give oral tablets, the dose may increase, but they respond very beautifully. So हमको ओरल टैबलेट काम करती है कि नहीं करती है चेक करना चाहिए. और अगर अगर पहली बात तो ये हो सकता है कि हमारा ओरल टैबलेट देने के बाद E2 बढ़े ही नहीं, E2 कम आ रहा है, इसका मतलब है कि दवाई इनइफेक्टिव है. इन दैट केस या तो हम ब्रांड बदलेंगे, या फिर हम 2 दवाइयाँ मिक्स कर देंगे, या फिर हमें लगेगा कि E2 की वैल्यू तो बड़ी अच्छी आ रही है पर लाइनिंग नहीं बन रही है. इन दैट केस आई थिंक इट इज मोर डेंजरस थिंग, बिकॉज हियर शी मे बी हैविंग ए डैमेज टू एंडोमेट्रियम, बिकॉज E2 की मात्रा तकरीबन 180 और 200 के बीच में आनी चाहिए हमारे लिए, इफ यू वांट टू रियली गिव आवर ओपिनियन अबाउट थिन एंडोमेट्रियम. और दवाई भी So, 8 दिन. यस. yes, so there is a question from our audience. Even after infusion of just a minute. So from Dr. Anita Raj Purohit, even with
intrauterine infusion of PRP, endokinase and endo scratching, endometrium thickness is not improving. So what to do next? Break. And I'm mixing, sir. One more question from Mr. Reshma Kunal Rajboi, that in some patients, even if ET goes to 6.5 mm and then it regresses, how should we manage? या दोनों सवाल बहुत ही really very good questions to both of you, Anita and Dr. Rajbhai. Very good questions you have asked. So, so simple message is that first of all कि जो हमारा यूट्रस का लाइनिंग है कई बार बनता है और दे गो टू अराउंड 7 मिलीमीटर फिर वो टूट जाता है देन इट कम्स बिकम्स डिफ्यूज ऐसा होता है तो ऐसा आई थिंक सो जब भी ऐसा होता है लाइनिंग बन ही नहीं पाता है सेकेंड इज के लाइनिंग हमारा बन ही नहीं रहा है और हमने उनको पीआरपी दिया जीसीएसएफ दिया ये एंडोकाइंस डाले आपने बताया हमको सब दवाइयाँ दी लाइनिंग बन ही नहीं रही आई थिंक सबसे पहले हमें बैठ के सोचना है कि प्रॉब्लम है क्या कि प्रॉब्लम है क्या सो गिव यू वन लिटिल एग्जांपल डॉक्टर अंशु वन डॉक्टर कॉल्ड मी शी सेड कि मेरे पास एक पेशेंट है जिसको हमने भी इसका एक टेस्ट होता है ईरा ईरा चेक करता है लाइनिंग का ग्रोथ कैसा हो रहा है मुझे ईरा टेस्ट करना है पेशेंट का मैं करूं क्या ना करूं सो आई सेड ईरा एक बहुत ही महंगा टेस्ट है और रिकमेंडेड टेस्ट नहीं है और मुझे केस के बारे में बताइए तो उन्होंने बोला हमने एक पेशेंट के अंदर 6 एम्ब्रियो बनाए और एम्ब्रियो बहुत अच्छे एम्ब्रियो अच्छे नहीं बने देवर ग्रेड 2 एम्ब्रियोज हमने उनका पीजीटी भी करा और पीजीटी करने के बाद में एम्ब्रियोज हमने ट्रांसफ़र करे सो ग्रेड 2 एम्ब्रियोज का पीजीटी करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए और जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए और स्पर्म मॉर्फोलॉजी इज लेस देन 1% और स्पर्म काउंट इज ऑल्सो 1 or 2 million तो यहाँ पर द टीम वांटेड टू गो फॉर ईरा तो आई सेड ईरा इज नॉट रिकमेंडेड हियर ईरा वी हैव टू वर्क ऑन द मेल पे काम कीजिए और बेबी इम्प्लांट हो जाएगा उस तरह से हमको देखना है कि हमारा मेन इश्यूज हो कहाँ रहे हैं सो जब एंडोकाइन पीआरपी फेल होता है तो हमको देखना है कि कारण क्या है हमारा अगर आपका लाइनिंग इज यू गॉट क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस कुछ काम नहीं करेगा कुछ काम नहीं करेगा अगर आपकी बॉडी में एशरमैन सिंड्रोम है तो कोई भी दवाई काम नहीं करेगी ऐसे केस के अंदर you can do hysteroscopy and cut the adhesions that's all you can do but chronic endometritis or having Asherman syndrome won't benefit because जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम की बीमारी खराब हो चुकी है यू मे ट्राई बट इट डजंट वर्क आउट मच ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा लाइनिंग रिफ्रैक्टरी है जो कि लाइनिंग अच्छा है पर लाइनिंग ग्रो नहीं कर रहा है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस तो वहाँ पे इट मे वर्क बाय गिविंग देम सम सॉर्ट ऑफ हार्मोनल medications सो प्रॉब्लम जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट एंड और हर एंडोमेट्रियम डिफरेंट होता है जानना बहुत ज़रूरी है on the other hand endometrium गिर जाता है हमारा it grows then falls down I think the main reason can be the age of the patient sometimes the age is very advanced then these things occur due to hormonal imbalance और मैं जैसे PCOD the endometrium shrinks तो ऐसे केस में बोलूँगा जब भी ऐसा आपके साथ में ऐसा हो रहा है दो तरीके हैं या तो 1-2 महीना वेट करें then you go ahead number 1 number 2 give them a course of free days or overall L or Malayan give them a course of that for around 2 months it will regularize everything and then it will start growing or you can give them a short of you can give them decapeptyl or lupride injections which are short acting injection or one long acting injection they will suppress the endometrium infection and the ET can grow सो कभी ऐसा होता है आपके साथ में कि लाइनिंग गिर जाता है तो इसमें वरी नहीं करना ऐसा होता है सो आई थिंक वेटिंग फॉर 2 months विल गिव यू द राइट आंसर और जल्दबाजी में हर साइकिल के अंदर आप इंड्यूस मत करें और तकरीबन 1-2 महीना वेट करें आई थिंक थिंग्स वर्क आउट प्रीटी वेल फॉर देम एंड ऑफ कोर्स आई ऑलवेज से दैट गिव देम लॉट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस बिकॉज दे डोंट हार्म सो गिव देम आई लाइक गिविंग देम ब्राह्मी विल देयर माइंड I want to give them Ashoka Rest 2 चम्मच दिन में 3 बार या 2 बार
and I want to give them Falgarit. Falgarit एक चम्मच सुबह शाम. uh, you have to put in the milk and take it along with कच्चे धागे की मिश्री. So बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हम मिलकर जोड़ते हैं आपस में लाइनिंग बनाने के लिए. बट अगर आपका लाइनिंग खराब है, बहुत ही खराब है, तो आप चाहे पीआरपी दीजिए, चाहे जो देना दीजिए, चाहे स्टेम सेल्स कीजिए, आउटकम इज नॉट गुड एंड दे आर नॉट रिकमेंडेड देयर ऑल्सो. वन आउट पेशेंट may conceive, but I think you should be very careful about saying कि तुमने जादू करा. It doesn't happen like that. Yes. So, sir, next question is, what is your strategy even if the patient is not responding to very high dose of estradiol? ब्रेक, टोटल ब्रेक. अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मैंने पहले बोला कि वी कैन चेंज द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. वी कैन गिव देम वेजाइनली, वी कैन गिव देम ट्रांसडर्मल जेल. यही ऑप्शन है. सबसे पहले कारण ढूंढना है, पहले कारण का ट्रीटमेंट देखना है ना. सो अंशु, अगर किसी को पीसीओडी है और हम ई टू हम उन्हें एस्ट्राडॉल दे रहे हैं, तो लाइनिंग बन ही नहीं रहा उनका, बिकॉज पीसीओडी में the levels of E2 are already high, but androgens are more. So we have to suppress androgens, then E2 will become high. In such a case, what I normally do is that I will give them, I will give them decapeptyl और ट्रिप्टोरेल और न्यूप्राइड तकरीबन 20 दिन के लिए. वो देने से जो बॉडी में एंड्रोजन्स की मात्रा होती है वो कम होती जाती है. एंड देन दे विल रिस्पॉन्ड वेरी गुड टू estrogens. This is what I normally like to do for my patients. And yes, sometimes दवाई काम नहीं कर रही है. So in that case, you can give them, you can change from oral mode to transdermal route. We can use something called estrogen. That also gives us a good option. But कारण बिना ढूंढे हुए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कारण नहीं ढूंढते हैं. हम डॉक्टर अंशु, हम ढूंढते हैं थिनिटी, और हम थिनिटी का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं. थिनिटी पहली बार जस्टिफाइबल है कि नहीं है, वो हमें पता ही नहीं रहता है. सो मेरे जो साथी जुड़े हैं हमारे साथ, जो हमारे हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ में हैं, वी हैव गॉट आई थिंक मोर देन 50 people who have joined us. Just remember, and probably I think few lakhs, normally our viewership goes to around 3 to 4 lakhs in 2 days. So people are gonna watch us. Just know that, find out the cause of thinity. First of all, कॉज ढूंढिए, उसका इलाज कीजिए. और कई बार जब कोई चीज बेइलाज हो जाती है, उसको ब्रेक दे दीजिए. एक 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 जैसे घोड़े को चाबुक लगाते रहेंगे और घोड़ा फिर बैठ जाएगा, तो इट भी बैठ जाता है. गिव देम अ ब्रेक, गिव देम 2-3 months का ब्रेक, एंड मेनी टाइम्स दे कम बैक प्रेग्नेंट देमसेल्फ ओनली. हम कहते Yes. हैं हमारा एंडोमेट्रियम 4 मिलीमीटर का है, हमने डाला है, वी पुट एन एम्ब्रियो 4 मिलीमीटर पे, हम नहीं होगा तुम्हारा बेबी. कितनी बार ऐसा हुआ मेरे साथ में. व्हेन आई से तुम्हारा एंडोमेट्रियम 5 मिलीमीटर का है, मैं ईटी नहीं करूंगा. करेंगे, मुझे ईटी कराना है. जैसे दे डू इट इन, दे गिव इट इन राइटिंग. तो मैं एक बेबी को मैं एक गलत कोप में नहीं डालना चाह रहा हूँ. एंड यू वोंट बिलीव इट अंशु, मुझे कम बैक विद ट्विंस. Good. एंड देन आई से, जिसको राखे साइया, Fine. सबसे ऊपर ईश्वर है. तो हमें कभी बस नेगेटिव नहीं होना है, हमको सबको स्पेस देना है, टाइम देना है, और पर गाइड भी करना है. मैं ये नहीं कह रहा कि हम 5-6 मिलीमीटर पे स्टार्ट डूइंग एम्ब्रियो ट्रांसफर्स और आईयूआई, दैट वोंट वर्क आउट. With proper counseling. So, sir, now we have already discussed many advanced and innovative therapies like PRPs, GCSF. Now, my next question is, but I would like to put one more question from audience, from Mr. Yogesh Gadigar again. Which day of cycle should we start estrogen in stimulated cycle? इसका कोई किसी तरह का कहीं लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं है. So this question is from, can I read the question? Is from who? From Yogesh Gadigar. Okay, योगेश जी. तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है योगेश. So what Yogesh, I do here is that I take my things in a very simple way. What I do is I start with, my favorite is letrozole, because अगर हमने क्लोमिफेन दिया तो फॉलिकल ज़्यादा बन जाते हैं. I normally give 2.5 milligram of letrozole starting from day 2 of the period. तो पहले 5 दिन में लेट्रोजोल देता हूँ. और अगर मेरे को लगता है कि फॉलिकल पिकअप हो गया है, फॉलिकल ग्रो करना शुरू कर दिया, देन आई स्टॉप इट. अदरवाइज आई विल ऐड एचएमजी. मैं 3 दिन एचएमजी ऐड कर देता हूँ इसके ऊपर. सो डे 2, 3, 4, 5
6 में जाएगा लेट्रोजोल, डे 6, डे 7, डे 8 में जाएगा HMG, और डे 9 पे हम उसको बुला के चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि फॉलिकल बड़े अच्छे बन गए, फॉलिकल्स आर नाउ 19-20 मिलीमीटर, और एंडोमेट्रियम भी बड़ा अच्छा एंडोमेट्रियम बना हुआ है। आई मे नॉट ऐड ईस्ट्रोजन एट ऑल, मुझे E2 ऐड ही नहीं करूँ। ऑप्शन हमारे, लाइनिंग इज वेरी गुड इन दिस केस, बट फिर we add E2 here and then we continue till the pregnancy 70 days. बट अगर मेरा लाइनिंग बन गया, अच्छा लाइनिंग बन रहा है, आई मे नॉट ऐड E2 एट ऑल, लेकिन नेचुरल साइकिल वी डोंट ऐड E2 एट ऑल। बट इन केस मुझे लगता है कि छठे सातवें दिन पर मेरा लाइनिंग अच्छा नहीं है और फॉलिकल बनने शुरू हो गए हैं, आई मे ऐड ईस्ट्रोडियोल फ्रॉम डे 6। सो मुझे ईटी को फॉलो करना है। अगर मेरा ईटी बनना शुरू हो जाता है, आई कैन ऐड सम स्टिमुलेशन विद transdermal estrogens or oral estrogens, I may start, but not always. But in case her lining is not formed properly और follicle बनना शुरू हो गया, तब मुझे E2 ऐड करना ही करना है। So I'll add her E2, add her estrogens on day 6 or day 7, और यहाँ पर मैं normally uh, I'll give them one tablet of estradiol within the 4 times, 4-5 days of इनके अंदर, and I also carry out the level of E2 in the body के फॉलिकल कितना E2 बना रहे हैं, और नॉर्मली E2 शुड बी अराउंड 200 पाइकोग्राम्स पर एम। तो E2 कब देना है, कब नहीं देना है, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ द पेशेंट इज, on what day we are seeing the patient, and how is their follicle size. Follicle size अच्छा है, E2 you may not give, you may give, is our choice. बट अगर E2 कमजोर है और फॉलिकल बनना शुरू हो गया, तब हम E2 ऐड करना है, और आई नॉर्मली ऐड by giving them 8 milligrams of estradiol every day, 2 milligram 4 times a day. Yes. Okay, so my next question is how you can see consistent results with the use of vaginal sildenafil or pentoxifylline. Do we use pentoxifylline, sir? मैम, ऑल दिस मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, हम सब यूज़ करते हैं, बट हमको, बट एज ए मूव ऑन, हाय अनुराधा, हाउ आर यू, मधुलिका, प्रत्युष, राजकुमार। सो Anshu, I'll take 1 minute to say hi to all my friends. Anu, Madhuri, Rajkumar, Poonam, Navid, Kavita. Kavita says speak in English. Sorry, Kavita, speak in English. Sharin, Divya, Purnima, Musharraf. So great, guys. I'll keep meeting you guys, and Paras, I'll keep saying hello to all of you. So I'll come back to the question now. So क्या सवाल था आपका? I sorry, I got carried away by, Wait, no, क्या sir, सवाल था issue, आपका? sir. Sir, have you seen consistent result with the use of vaginal sildenafil or pentoxifylline? No, again, not indicated at all. मैं लिखता हूँ. Whenever I'm having a problem, I do write, but they are not. अगर वो काम कर रही है तो अच्छी बात है, but if you look at the guidelines of ASHRAE, look at the guidelines of all European societies, they are not indicated. Sildenafil, Ecosprin, indicated नहीं। ये एक तरह का ये रेड लाइट कहा जाता है इनको। इट्स रेड लाइट मीन्स वी शुड नॉट गिविंग इट। सो PRPs, stem cells, endocrine, GCSFs, giving them all these Ecosprin, Sildenafil are not recommended. I'm telling you, not recommended. I do give. After telling them it is not recommended, but मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, so they say we are okay. Many people give heparin. अब heparin is not recommended. Do give. But very very sure कि जो हम कर रहे हैं वो justified है क्या नहीं है क्या नहीं है. This we have to look at it, but they're not recommended. But in case you give, I'm saying I do give, but talk to them and explain them that this may or may not work. I'm giving it as an empirical therapy. This is very important. So मधुलिका का एक सवाल है, मधुलिका सिंह, डेकालुप्राइड ट्रिप्टो, हाउ मच, हाउ लॉन्ग? How much? How long? ठीक है, अंशु इसको ले लें सवाल को एक बार हम। Yes, yes, sir. थोड़ा Please. सवाल I would. I was again. Next was mine. थैंक यू सो मच। तो ये वाला जो सवाल है ये हम शुरू करते हैं। अगर मुझे किसी केस उलझ गया मेरे पास में, PCOD उलझ गया मेरे पास में, या फिर कोई ऐसा उलझन आ गया कि इनको लाइनिंग बन नहीं पा रहा है ऐसे केसेस में,
सो आई गिव देम एन ओसी पिल। मैं उनको एक टेबलेट एक 3 days और ओवरऑल और माला एन माला डी जो भी दवाई मिलती है, गिव देम 1 tablet a day from day 5 to day 21. Day 21 I start Deca. Deca is a brand name actually, so I talk about Tripto. Triptodilin 0.1 milligram per day, or I give Lupride 1 milligram per day, and give it till she gets her periods. जब पीरियड्स आते हैं हम लाइनिंग चेक करते हैं, लाइनिंग थिन होती है, देन वी स्टार्ट हर ईस्ट्रोजन्स इन एन एचआरटी साइकिल। और इस साथ में डेका या ट्रिप्टो या लोप्राइड चलता रहेगा टिल द टाइम वी डोंट स्टार्ट हर ल्यूटियल फेज सपोर्ट। ये चलता रहेगा। सो दिस इज द वे इट हैपेंस। सो And वी so गिव one इट more thing, Madhulika Singh has added one more thing that can given a growth factor as well. सो मधुलिका, ये सब चीज़ें ना बड़ी एम्पिरिकल है। आप ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन दे सकते हैं, ये बहुत महंगा नहीं होता है, ग्रोथ हार्मोन आप दे सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। तो सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि दीज आर नॉट रिकमेंडेड थिंग्स। मैं भी देता हूँ बट रिकमेंडेड नहीं है। I try avoid not giving it until I've had a failure. I don't give it. So all these growth hormones, luprides, triptorelins, GCSF, endokines, ecosprin, vaginal sildenafil, they are not actually indicated. मैंने जब भी एक लोग काम दवाइयाँ काम हमेशा काम नहीं करती हैं, बट अगर हम आप कारण ढूंढेंगे तो सब काम होना शुरू हो जाता है। कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। और हमें लगता है कि एंडोमेट्रियम बहुत थिन है, आई थिंक इमीडिएटली वी शुड गो इन फॉर हिस्टोस्कोपी। Do a scopy, you may find Asherman syndrome there, may find additions there which you can remove, and then they start growing. सो कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। कारण का मेडिकल इलाज करना या सर्जिकल इलाज करना वो हमारी जिम्मेदारी है। और एक बार जब हम इलाज कर देते हैं देन थिंग्स स्टार्ट फॉर्मिंग बेटर। सो कभी भी आप निराश नहीं होइएगा। कई बार लाइनिंग बनने में मेरे को 5 महीने लगते हैं, इट टेक्स मी 5 months। अभी मेरे पास एक जैसे पेशेंट हु केम फ्रॉम मर्चेंट नेवी, इट्स a real life case। वाइफ एंड हस्बैंड both इन मर्चेंट नेवी। वाइफ का AMH was around 13, AMH 13 embryos made, but her endometrium didn't form, and her BMI was barely 22। 22 BMI, she was from हरियाणा। 22-23 का BMI, और ये चलता रहा तकरीबन 3 महीने तक चलता रहा। 3 months nothing happened to her। फिर उसको मैंने 1 महीने का ब्रेक दिया, एंड देन आई गिव हर लेट्रोजोल 5 milligrams per day and HMG, and beautiful endometrium she found, and now she's, I think she's already delivered। She already delivered also now। सो एक कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एक मेरे पास पेशेंट आते हैं इनके लाइनिंग वॉज डिफ्यूज, लाइनिंग वॉज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, एंड I did an histoscopy, found few bands lying here and there। हमने बैंड्स को हमने कट किया, and we put her on OC pills for 2 months, and then endometrium starts forming again। सो हमें देखना है कि कारण क्या है। सो ऑल माई फ्रेंड्स आर हियर टुडे, वी हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अस टुडे। कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। सो बी लाइक a Mr. James Bond, find the reason and then only start treating। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, then take a break, give them OC pill for 2-3 months and they become better। तो राजकुमार लोहार जी ने बोला है कि PRP से चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्रीड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चांसेस बढ़ते होंगे, बट अभी तक ये रिकमेंडेड नहीं है। Many people find very good outcome with PRPs, but it is not an acceptable norm as of now। If you do it, it is more of an experimental technique। Yes, back to you, madam। So, my next question is: in the cases of post-tuberculosis endometrium or atrophic endometrium, is there any long-term protocol you recommend? बहुत सिंपल है, उसको पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, हर एंडोमेट्रियल रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग। सो इन सच ए केस यू गिव हर OC pills for 2-3 months, और गिव हर परमेरिन फॉर 2-3 months। देख हर ब्लीड, तो 3-4 महीने आने दीजिए, तो 3-4 महीने आएंगे।
तो लाइनिंग ग्रो करना शुरू करेगी दोबारा से. एंड डू गिव देम आर्जिनिन. आर्जिनिन इज वन थिंग विच अगेन इज एम्पिरिकल, बट आई गिव लॉट ऑफ आर्जिनिन. सो अगर आर्जिनिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो उनको आर्जिनिन देने से उनको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मेरे को मिलता है. तो 3 या 4 महीने उनको गिव देम प्रिमेरिन एंड ट्रेमोलेट and MP or MPA, make her bleed minimum three times. Give her some antioxidants, give her some arginins, और 3 महीने के बाद फिर आप शुरू करो. उनको देखना है, you'll find beautiful endometrium growing. So the artificial HRT, they work very well. They do very well, but after 3 cycles of or 4 cycles of induced periods. And So Anuradha there wants is to know. Anuradha Sood has asked one question: can Leupride depot be alternative to daily dose? Yes, madam. Many people give. मेरे पास जो मेरे पेशेंट्स which come from overseas, and a lot of people come from overseas, foreign countries they come, जो कि पिकअप करवाने के बाद they go back, and when they come back after getting their, whenever they get their medical visa, they have to come on a visa, na? Not that we cannot do anything to them. When they come back with a medical visa to us, so they have a lot of uncertainty ना कि कब क्या होगा उनके साथ में. So they, those people take a lot of depots. वो डिपो लगा कर आते हैं. That's absolutely also okay. Depot also works very well. But जब भी डिपो पर भी पेशेंट रहते हैं, I say that when you have to start, do their E2 LH, E2 less than 25, LH less than 4, and ovaries are down regulated. I think you can start her. You can start her HRT. They respond pretty well. But do So the E2 now, LH. Starting. so let's come to the embryo transfer strategy. My one or two questions are regarding ET. So, do you proceed with frozen embryo transfer if lining is less than 7 mm, but trilaminar and No, I Doppler don't. shows a good vascularity? I I don't, because मेरे को I am obsessed with embryo transfers, because हमारे लिए वो एक एक्सपेरिमेंट है. और आप खुद देखिए ना, कई बार अंशु, कई बार किसी के फॉलिकल रेडी हो जाते हैं 6 से 7वें दिन के ऊपर fertility. So follicle should be ready on 10th day. If follicle is ready on 6th day, तब तो कर लेते हैं हम लोग, but the outcome is not very nice. Same way, endometrium should grow in a particular fashion. अगर endometrium is less than 6 millimeter, blood supply is good. अगर you want to do, you can do, but after counseling her. But I like her to have endometrium of around 8 to 9 millimeter. अगर मेरे सर पे कुछ तलवार नहीं टंगी है और पेशेंट मुझे बोलता है कि डू द बेस्ट फॉर मी, टेक योर टाइम, then I think I won't do. I will Okay. give her Next. arginine. I'll probably wait for some more time and get her ET to 8 to 9 millimeter. परंतु ये किंतु अगर उसकी लाइनिंग बनती ही नहीं है, हमने सब कुछ करके देख लिया और अभी वो 7 मिलीमीटर पर आती है, आई विल गो ahead and do it. I will surely do it. But after counseling and after making her understand why we're doing it, you So can do it. Madhulika Singh has again asked one question: what hormonal evaluation has to be done? Nothing. There is no hormonal evaluation ever done it for an embryo transfer. We only do, जो लोग करते हैं वो recommended नहीं है. लोग करते हैं तो सब लोग, आपको अपना तरीका है, तो सब ठीक होंगे. But I don't do. I just do a serum progesterone values on the day I am starting the luteal phase support, and that should be less than 1.2. I do P4 values, but that is before I start their luteal phase support. I normally don't carry out any hormonal evaluation. Okay. And sir, would you advise blastocyst transfer over cleavage stage embryos in thin lining? It doesn't make a difference. बच्चा चाहे हो 2 दिन का या बच्चा हो 5 दिन का, बच्चे को गर्माहट चाहिए, बच्चे को खाना चाहिए, बच्चे को ब्लड चाहिए, बच्चे को एक कोजी वातावरण चाहिए. वो नहीं मिलेगा तो आप चाहे डे 5 पे करो, चाहे डे 2 पे करो, डे 3 पे करो, शी मे नॉट, इट मे नॉट सक्सीड. जो बेबी को चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको, तो वो सक्सीड नहीं करेगा. हमें नहीं करना चाहिए. Sir, and how do you counsel the patient about the chances of success when the endometrium is persistently thin?
आई टेल देम दैट ये सक्सेस मेरे हाथ में नहीं है. I cannot challenge your faith. I cannot challenge the wonders of God. I have failed it. I have failed Anshu. जिंदगी में कम से कम 3 बार मैं फेल हुआ हूँ. और 3 बार मैं फेल हुआ हूँ जब मैंने बोला कि आपका कुछ हो नहीं सकता है. आपका हम कुछ नहीं कर सकते. आपके एम्ब्रियोज बहुत अच्छे हैं, लाइनिंग अच्छा नहीं है. तो उन्होंने बोला कि अभी हम वापस आपके पास नहीं आ सकते. आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर करना ही है. I took a consent and did that at lining of around 4.55 millimeter. And then they came back to me with a single blast transferred, single blast and a single PV. After 10 months, after in 2 years, the child come to my OPD and she was dancing on my table. आते हैं ना बच्चों को लेके मिलवाने के लिए. तो वो Yes. ब्लास्टोसिस डांस मैं कॉल्ड है डांसिंग ब्लास्टोसिस which I put at a 4 millimeter. तो बेबी वो डांस कर रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए उस समय. और मैंने फिर दोबारा पीछे मुड़ के देखा ईश्वर को. मैंने बोला यार नथिंग. गॉड भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है. और एक पेशेंट की जो पॉजिटिविटी है, फेथ से ऊपर कुछ नहीं है. सो आई थिंक हमारा Definitely. फर्ज है उन्हें गाइड करना और उनको ठीक चीज करने के लिए, नई चीज करने के लिए बताना. बट अगर कुछ वातावरण अगर ठीक नहीं है तो फिर हमें करना चाहिए. नथिंग रॉन्ग इन इट. बाकी उनकी किस्मत. We can't take away their hope. Remember that. Do science, but don't take away their hope. There are magics occurring in their life. And so my next question is, do you see any genetic or immunological association with chronic thin endometrium? Not commonly. Very, very genetical, no. There can be some syndromes, but no. There is no relevance of checking for any genetical syndromes. अब somebody has got Turner syndrome, Schiller thinity, तो उस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं. But we don't carry out any genetic analysis. It may be a question of academia where you want to find out something, but nothing. We don't do anything. We don't do any genetic analysis for thin endometrium in our practice. Barring, you can do look for Turner syndrome in case she has got poor ovarian response or she's a poor ovarian response. Many people Sir, carry many people carry out ERA testing when the yes. endometrium is good and she's not implanting, but it's a different ball game altogether. तो हम किसी भी पेशेंट के अंदर पे बहुत एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग नहीं. So you have already. Sir, can you repeat one? There was one message from audience as well. Do you use endometrial receptivity assay (ERA) in thin endometrium नो, patients? नेवर नेवर. नो रोल इन इट. एरा का ऐसे कोई रोल नहीं है. एरा इज ए रेड लाइट. एरा का देखिए, हम बहुत चीज़ें करते हैं, हमें करना अच्छा लगता है, हम करते हैं, करनी भी चाहिए. हमें साइंस को आगे बढ़ाना है और हमें गलतियां करनी है और सीखना है. परंतु एरा का आज की डेट में कोई रोल नहीं है. हम अगर करना चाह रहे हैं तो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं. एरा हैज बीन रिफ्यूटेड ऑफ एनी. बट वी डू दैट इज आवर ओन अंडरस्टैंडिंग. बट एरा इज नॉट ए रिकमेंडेड टेस्ट फॉर द पीपल. So one important question regarding patient counseling, that at what point of time would you recommend considering surrogacy for repeatedly thin endometrium case? Definitely, we should consider in case uh, the endometrium is thin and know the reason that this endometrium, like chronic endometritis or this endometrium has got Asherman syndrome. You've done an hysteroscopy. Endometrium is consistently less than 4 to 5 millimeter. She's got bad adenomyosis. Endometrial myometrial junction is damaged. It's not responding to marina or term regulation. I think I'll tell them surrogacy. Surrogacy is a very strong indicator in such a case. Very strong indicator. करना चाहिए. So there are few questions from audience. Yeah, we can Munni take one last. Agrawal, Yeah. so Munni Agrawal, and she's asking Luprolite role again, please. I think this is the one need of many other doctors as well. Yeah, so Leuprolide, I think we'll soon have a curtain raiser on this because this question is coming from many people. And so Leuprolide will down regulate the ovaries, no? तो Leuprolide हमारे दिमाग से LHFSH को नहीं आने देता है. और जब LHFSH नहीं आता है तो ovaries become small. So ovaries become small और जब ovaries छोटी होती है तो बॉडी में E2 नहीं बनता है.
तो ल्यूप्रोलाइट का जो मेन रोल आता है वो आता है एडिनोमायोसिस के अंदर और पीसीओडी के अंदर एंड मे बी एंडोमेट्रोसिस के अंदर। हम हर जगह ल्यूप्रोलाइट नहीं देते हैं। We give leuprolide when endometrium thinness is due to either adenomyosis, endometriosis, and my favorite is in PCOD patients. So it will down-regulate the ovaries, the levels of E2 will come down, and then it will build up very slowly. Yes. Sir, again a question from audience, Mr. Rajkumar Lohar. Genetically, syndrome may be least change changes thin, but most likely to change have endometrium thickness. I'm not getting fully, but he's asking again. Are you able Uh, to read, sir? yeah, I am able to, but Rajkumar. we don't carry out any genetic analysis in our patients. Endometrial hyperplasia may be having some sort of predilections, but here the lining is thick. So when endometrium में we कहना चाह रहे हैं कि it is more important when the endometrium is thick, then there can be some genetic predilections. Thick is also a big challenge which I face nowadays. So, yes, I agree. So when the endometrium is thick, there can be hyperplasia, then there can be some genetic syndromes coming out along with the over secretion of estrogens. तो थिनिटी के अंदर मुझे कोई रोल नहीं दिखता है टू डू एनी जेनेटिक स्क्रीनिंग। Sir, Hi Ashana, how are you? Great, I'm meeting so many friends today. Ashana reached home safe, I think so. So great. I think we can take one more question and then we can wrap it up. अच्छा लगा आज we had a very sir, nice discussions. Madhulika Singh has again asked one question. After how many hours of thawing we can transfer in triple line but thin endometrium? मैंने पहले भी बोला है कि वो आपकी मर्जी है. It's your call. This is entirely your call. I always say that अगर endometrium thin है, outcome poor रहेगा. आप किसी भी तरह से किसी कैसे भी डालो. But I think that we should normally routinely be wait for around 1 hour. We want the processes to expand. It may expand in 40 minutes, may take 2 hours. So wait for 2 hours, 3 hours even. That doesn't make a difference. Let the process expand. But thin endometrium में उसको डालने का कुछ फायदा है नहीं. I say that make the endometrium better. Make the endometrium better. This is more important. एंडोमेट्रियम ठीक कीजिए उसके बाद आप कैसे भी एम्ब्रियो डालो एम्ब्रियो बैठ जाएगा बट पुटिंग अ टॉप एम्ब्रियो इन थिन एंडोमेट्रियम वोंट वर्क आउट दिस इज व्हाट माय फीलिंग So again, one more question from Muni Agrawal. I think this is our last question. लास्ट Let's क्वेश्चन take या it. लास्ट यस Yeah. So in case of PCOD, first we give opportunity, then Leuprolide, and I think OCP she is writing. OCP या instead of, yeah. आई First गिव we give OCP, then Leuprolide. excellent so I gave OCP for 21 days Yes. and from day 21 of the week I give OCPs from day 5 to day 21 and from day 21 of the periods I start her this is what I do or I give them continues till day of starting luteal phase support. Done. I think it is very interesting and long one. It's 1 hour and 45 minutes. So I think it's super hit. सर टाइम बिल्कुल पता नहीं चला. दिस डिस्कशन वाज रियली मतलब वंडरफुल. वन You ऑफ द were वंडरफul सेशन आई हैव एवर डन up till you're a now. wonderful moderator and thank you so much. Thank you whole of Gavalier which is there and thank you so much ma'am. I wish you all the best. और हम सब जुड़े रहें ऐसे ही और आपसे बात करते रहें. So I think we all have our number. You have number of Dr. Anshu. You have my number. Everything on the screen. You can always call us up. You can give us a call. You can talk to us. You can we are on Facebook, LinkedIn, हर जगह पर. Like everyone, we are everywhere. So call us anytime and then we can take things further. But it was lovely being with all of you and I really enjoyed talking to you all. So So take thank you care. so much, Thank sir. you, madam. Thank you so much, sir, for the nice discussion. This is not just a presentation, but this was one of my humble effort to learn from you, sir. Thank you so much, sir, and thank you to all the audience for interactive session, for putting up your questions. Thank you, sir. Thank you. जय Namaskar. हिंद. Bye. सब खुश Jai रहो, Hind. अच्छा करो और बात करते रहो. Thank you so much. Ji, sir. Bye Bye. bye.